Hello students, today we will complete our lesson 4 in the Kingdom of Fools of the Movements book. Okay, let's start my lecture. It has page number 22. It has fallen on a poor burglar and killed him. The wall which the bricklayer had made was fallen on the poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You have to be punished. She thought for a minute. The dancing girl, who was blamed by the king, thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street." Now the dancing girl had also the reason for walking up and down in that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. Scoundrel क्या होता है? Dishonest person. Means the dancing girl has given goldsmith some jewelry for preparing, but that goldsmith was a lazy scoundrel. He made so many excuses and said he would give it now and he would give it then and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. Means dancing girl was called 1,000 times by the goldsmith, but he had not prepared her jewelry on time, so she had made many walks. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord, it's the damned goldsmith faults. Damned means dishonest, कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये गोल्डस्मिथ का फॉल्ट है, उसने मुझसे कई चक्कर कटवाए. Poor thing, she is absolutely right, thought the king. The king was not a wise person, he was a foolish person. He also came into in the talking of the dancing girl. He also thought that dancing girl was saying correctly. So we have got the real culprit at last. Get the goldsmith. Now the king gave order to call goldsmith. At last goldsmith was called. At once the king bailiffs. Bailiffs होते हैं ऑफिशियल पर्सन्स, जो राजा के ऑफिशियल पर्सन्स हैं, कर्टियर्स जिनको आप कह सकते हैं, सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम. जब उसको पता चला ना कि उसके खिलाफ राजा ने ब्लेम लगा रखा है, तो वो छुप के बैठा था अपनी शॉप की कॉर्नर में. बट ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज टाइड बाय द कर्टियर्स. माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ. इट्स ट्रू, आई मेड दिस dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. कि मैं मानता हूँ कि मैंने इस गर्ल की ज्वेलरी उस समय पर टाइम पर नहीं बना के दी थी. क्यों नहीं बना के दी थी? क्योंकि जो रिच मर्चेंट्स का ऑर्डर था कि पहले उसकी ज्वेलरी बना कर दें. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे कुड नॉट वेट. उनके घर में मैरिज थी एंड रिच मर्चेंट्स could not wait. You know how impatient rich men are. जो रिच मैन होते हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, जल्दी बनाओ के दो. ये उसने ऑर्डर दिया था. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor man's jewelry? अब उसको बुलाया गया कि वो जो है रिच मर्चेंट कौन है भाई, उसको बुलाया गया. Made her walk him down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall. अब कौन है इसका असली, उसको बुलाया गया. Which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Call you name him. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house. जो रिच मर्चेंट है वही रिच मर्चेंट है जिसके घर की दीवार गिर पर थीफ कर गिरी है और वो मर गया है. और जो रिच मर्चेंट अब है फिलहाल वो उसके फादर हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट.
When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. Then the rich merchant was again called in the court by the king, and he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." The rich merchant क्या कहता है कि ये तो मेरे फादर के समय की दीवार है, ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये उन्हीं का फॉल्ट है, उन्होंने बनवाई थी दीवार. आई एम इनोसेंट. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर. नाउ द किंग कंसल्टेड, अपने इस केस को मिनिस्टर के साथ सॉर्ट आउट किया, एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और एक रूल, निश्चित रूप से एक रूल बनाया. इट इज़ ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. कि ये सच है कि तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तुम्हारे फादर का फॉल्ट है दीवार बनाने में, बट somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours. Inherited होता है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, पैतृक संपत्ति को आप जिसको बोलते हैं, जो फादर से सन को मिलती है, उनके चिल्ड्रन को मिलती है, सिर्फ सन को ही नहीं मिलती, बच्चों को मिलती है. एंड हिज रिचेज एज वेल इज सिन. अगर वो उसकी फाइनेंशियल संपत्ति का हकदार है तो उसके साथ साथ उसके सिंस का भी, पापों का भी वो हकदार है. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई. कि आई न्यू एट वंस, इवन कि मैंने अब सेट कर लिया, फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि जो ये हॉरिबल क्राइम हुआ है उसकी जो रूट है वो कौन है, रिच मर्चेंट है. तो यू मस्ट डाई, अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. उसको मारने के लिए एक नई सूली, जिसको कहते हैं, जिस पर फांसी का फंदा बनाते हैं, एग्जीक्यूशन, स्टेक फॉर द बनाई जानी चाहिए. एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल. फाइनल इम्पेलिंग क्या होता है, ये जो स्टिक मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन आप जिसको बोलते हैं, इम्पेलिंग, stick method of execution. It occurred to the minister that rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जो stake थी वो तो खुली थी, और जो rich merchant था he was a very thin person, तो उसको fit नहीं आ रही थी. It occurred to the minister that rich minister was thin है. He appealed to the king's common sense. He appealed, he requested to the king's common sense. The king too worried about it. अब राजा को चिंता होगी. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the snake. अब उन्होंने क्या किया, मूर्ख तो थे ही वो, उन्होंने कहा कि पूरी सिटी के अंदर एक फैट पर्सन को ढूंढो जो इस स्टेक में फिट आए, चाहे उसका कसूर हो या नहीं हो, whether he was faulted or not faulted, whether he was criminal or not criminal, he should be a fat man to be fitted in that stake. So that person was searched. That person was, who was that person? Disciple who had fattened himself for the months on bananas and rice and wheat and ghee. जिसने अपने आप को बनानास, घी, राइस खा खा कर अपना फैट बढ़ा रखा था. And that person was fitted for the that stake. What have I done wrong? I am innocent. I am sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree. Royal decree होता है royal order. When the servant searched that fat disciple for the stake to be fitted, at that time the disciple cried, I am innocent person, I am a sannyasi, I have not done anything wrong. But the servant said that it's the royal order, it's the king's order that we should find a fat man that should be enough to fit the stake. They said, and carried him to the place of execution. अब उसको वहाँ ले गए जहाँ पर उसको फांसी पर चढ़ाना था. He remembered his wise guru's words when he was in problem. At that time he reminded the guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. जो गुरु ने उसको बोले थे शब्द. While he was waiting for death, at that time when he was waiting for his death, he remembered his guru. In his heart
आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और कहा कि जहाँ भी तुम हो मेरी पुकार सुनो। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विज़न, जो गुरु था वो इंटेलिजेंट था, वाइज पर्सन था, उसने अपनी विज़न के अंदर जब वो ध्यान लगा रहा है, इमेजिनेशन, उसने देख लिया कि जो उसका है उसके पास मैजिकल पावर्स थी, सुपरनेचुरल पावर थी। उसने देख लिया कि जो उसका डिसाइपल है ही वॉज इन प्रॉब्लम। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू अ सच स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को, किसने फंसा लिया था अपने आप को मुसीबत में? डिसाइपल ने। अच्छा खाने के चक्कर में, ज़्यादा खाने के चक्कर में उसने अपने आप को, लव ऑफ फूड के कारण, अपनी लव ऑफ फूड की बैड हैबिट के कारण उसने अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। विस्पर होता है स्पीक स्लोली, वो ही स्कोल्डेड, सबसे पहले तो ही थ्रेटन्ड द डिसाइपल, उसको डराया, धमकाया, डांट लगाई। एंड टोल्ड हिम समथिंग, और उसके कान में धीरे से कुछ बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। देन ही सेड दैट, कि राजा जी आप ही बताओ कि गुरु बड़ा होता डिसाइपल? ऑफ कोर्स गुरु, नो डाउट अबाउट इट। वाई डू यू आस्क? देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, तो अगर गुरु बड़ा होता है तो मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, मुझे पहले स्टेक पर चढ़ाओ। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद डिसाइपल को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब disciple, when the disciple heard this, he understood, समझ गया, and began to clamor. clamor मतलब confused हो गया, पहले तो loud and confused, me first, वो भी चिल्लाने लगा। He also started to say first me, you brought me here first, put me to death first, कि मुझे पहले चढ़ाओ। दोनों के अंदर बहस हो गई, राजा और जो गुरु और डिसाइपल है उनकी एक ये साजिश थी, चाल थी। उन्होंने एक दूसरे को बोले कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ना है, पहले मुझे पढ़ना है। द गुरु एंड डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, जो किंग है ही वाज कंफ्यूज्ड कि व्हाई दे वांटेड टू टेक स्टेक फर्स्ट। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, कि तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने तो एक फैट मैन को चूज़ किया है जिसको हमने, जो हमारे स्टेक पर फिट आ जाए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। वाई? देर इज़ सम मिस्ट्री हेयर, कि इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, रहस्यमयी एक बात है, कहानी है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, विल यू प्रोमिस मी टू पुट, कि फिर वो राजा उसको कहते हैं कि अगर तुम मुझे पहले बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुम मुझे वाइज समझते हो, तो कि विल यू प्रोमिस मी, अगर, फिर जो गुरु है वो राजा को ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं, क्या तुम मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दोगे? इफ़ आई टेल यू, आस्क द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। सोलम का मतलब होता है फॉर्मल एंड डिग्निफाइड, कि येस, द गुरु टुक हिम असाइड। गुरु जो है राजा को एक तरफ ले जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, एंड विस्पर टू हिम, और उसको बोलता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, कि हम क्यों मरना चाहते हैं, टू ऑफ अस, हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, कि हम तो कहीं जगह घूमे हैं बट हमें ऐसी सिटी कहीं नहीं मिली और ऐसा राजा नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है ये जस्टिस ऑफ गॉड की स्टेक है, भगवान की स्टेक है, और इट इज़ न्यू, और ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इससे पहले इस पर कोई भी क्रिमिनल नहीं चढ़ा। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो इस पर पहले सूली चढ़ेगा, विल बी रीबोर्न, दोबारा जन्म लेगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का किंग बनकर। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, और उसके बाद जो चढ़ेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके बाद वो इस कंट्री का नेक्स्ट मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ अवर एस्केटिक लाइफ, एस्केटिक होता है सेंट की लाइफ से, हम अपनी सन्यासी के जीवन से तंग आ गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, अब हम कुछ समय तक किंग और मिनिस्टर बनकर एन्जॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने वर्ड्स की कीमत रखो, बात रखो। माई लॉर्ड, पुट अस ऑन टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट,
अब वो गहरे चिंतन में पड़ गया राजा, सोचने लग गया. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. And after rebirth, king also wants to become king again in his next life. So he ordered the execution postponed to the next day. So he ordered his servant that execution should be postponed for the next day, and talked in secret and said something secretly to his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in next life. कि हम अपना जो किंगडम है, राजा और मिनिस्टर, हम दूसरे को नहीं दे सकते नेक्स्ट लाइफ के लिए. लेट अस गो ऑन द स्टेक अवर सेल्स. हम दोनों ही स्टेक पर चढ़ जाते हैं. एंड वी विल बी रीबोर्न एज, और हम दोबारा से जन्म लेकर फिर से राजा और मिनिस्टर बनना चाहते हैं. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. जो होली पर्सन्स होते हैं, सेंट होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते. ही सेड, एंड द मिनिस्टर ऑल्सो एग्रीड विद द किंग बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ फुलिश पर्सन लाइक द किंग. So he told the executioners, we will send the criminal tonight. Then they told the executioners that they didn't tell that secret thinking to the executioners. So they also told that they will send the criminal tonight when the first man comes to you. कि पहले जो आएगा उसको पहले करना है, फांसी पर चढ़ाना है, और जो सेकंड आएगा उसको सेकंड. Those are my orders. The king said that those are my orders. Don't make any mistake. That night, the king and his minister went secretly to the prison. जेल में गए दोनों secretly. Released. सबसे पहले राजा और मंत्री ने क्या किया? Release, आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया. Guru and his disciple and disguised themselves. And disguise मतलब भेष बदलना, चेंज कर लिए अपने, उनके साथ क्लोथ्स को चेंज कर लिया. And arranged before hand with the loyal servants were taken to the stake and promptly executed. Promptly मतलब उसी समय, without getting any late. When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked, people frightened. When the bodies of the king and the minister were thrown into the forest for the crow and vulture, the people who saw the bodies of the king and the minister, they were frightened. They saw before them the dead bodies of the king and the ministers. The city was in confusion. When the city persons saw the dead bodies of the king and the minister, they were in confusion. All night they mourned. All night they felt grief, दुखी हुए, and discussed the future of the kingdom, कि अब हमारे फ्यूचर में हमारे किंगडम का क्या होगा. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. And on the other side, guru and his disciple who were preparing to leave that city without giving any notice, then the people of the city went to the king, and the disciple said that they need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and the minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple. कि वो दोनों गए, उसके cities people went to the guru and the disciple, but जो disciple है, he was agreed, but it took longer to persuade. Persuade होता है मनाना, convince करना. राजा गुरु को मनाने में तो कई देर लगी लोगों को, एंड जो डिसाइपल है वो तो इजीली मान गया. देन फाइनली एग्रीड टू, गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट, एक कंडीशन पर, दैट दे वुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो जो पुराने रूल्स थे, पुराने कानून थे जो राजा और मंत्री के द्वारा बनाए गए थे, मूर्ख के द्वारा, वो ख़त्म किए जाने चाहिए. From them on, night would again be night and day would again be day, and you would get nothing for a do. और जैसे कि कोई भी चीज़ लेते थे, anything cost should not be do. It became like any other place, और वहाँ भी वैसा ही सिस्टम होगा जैसा दूसरी सिटीज़ में. That's all for students today. You have to read that chapter carefully after listening the video.